Good morning, students. So again I am here for the remaining examples of 2.4 of harmonic progression. In the previous lecture we discussed on the sequence, that is the harmonic progression, definition of harmonic progression, after that the types of means. So what is called as the harmonic progression? The reciprocal of number are in arithmetic progression. The sequence is said to be what? हार्मोनिक प्रोग्रेशन. अगर ऐसी एक सीक्वेंस है उसका अगर हम टर्म्स का रेसिप्रोकल लेंगे तो उस टर्म्स का रेसिप्रोकल एपी में है. एपी में मीन्स व्हाट? इफ देयर डिफरेंस इज कांस्टेंट देन दैट इज एपी एंड दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ये हमने लिया. उसके बाद टाइप्स ऑफ मीन्स लिया. Means what? Arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of two positive numbers a and b. So there are formulae for am, gm and hm. I just recall the terms. Am is what? Arithmetic mean of two numbers, that is a plus b by 2. Geometric mean of two numbers is root ab. And harmonic mean of two numbers is 2ab upon a plus b. So the A, G, H are arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of two numbers A and B. So here we have types of means. So after that we take the n arithmetic mean and n geometric mean of two numbers A and B. वो भी हमारा हुआ है, उसके फार्मूला हम डिफाइन किया. उसके बाद एक एग्जाम्पल भी लिया था एक्सरसाइज 2.4 में. सो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे. उसके पहले हम एक थ्योरम लेंगे. So theorem. This theorem is what? This is actual the relationship between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. ये जो am, gm, hm है इसका कुछ रिलेशन है. दो तीन टर्म्स में a, g, h का कुछ रिलेशन है. वो रिलेशन का एक फॉर्मूला है, एक थ्योरम है, वो आप पहले प्रूव करेंगे. ओके. सो राइट द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम. इफ A, G and H are AM, GM and HM of two positive numbers, A and B respectively, then the first concept is g square is equal to a into h. g square is equal to a into h. ये हमें प्रूव करना है. और दूसरा एक और एक टर्म है, सेकंड कंसेप्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप बिटवीन a, g, h, that is h is less than or equal to g which is less than or equal to a. It means A is definitely greater than or equal to G and G is definitely greater than or equal to H. ये हमें प्रूव करना है. So given दिया है what is A, what is G and what is H. So प्रूव करेंगे. Let us write. Let A, G and H are AM, GM, HM of two positive numbers. A and B. So therefore we know that A is equal to A plus B by 2, G is equal to under root AB and h is equal to 2ab upon a plus b. ये तो हमने लास्ट लेक्चर में लिया था. am, gm, hm वो हमने फॉर्मूले में डिराइव किए थे. सो हमें पहला पार्ट प्रूव करना है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच. सो जी स्क्वायर करना है सिर्फ आपको. जी स्क्वायर मीन्स व्हाट? ए बी. जी स्क्वायर कितना है? ए बी है. इक्वेशन फर्स्ट. नाउ a into h करना है. a into h is this into this. a plus b by 2 into 2ab upon a plus b. देखो ये a plus b कट हो गया. ये 2 भी कैंसिल हो गया. So what is only AH?
So AH is equal to AB, A into B. Equation second. So only AB should रहा. So G square is equal to AB है, AH is equal to also AB. Therefore, hence G square is equal to A into H. ये सबसे important पहला formula which define the relationship between AM, GM and HM, arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. और एक concept है, हमें prove करना है A is always greater than or equal to G and G is always greater than or equal to H. So ये जो relation define करने के लिए, prove करने के लिए हम एक solve करने की टेक्निक है, वो देखो क्या है. पहले A minus G करेंगे, A minus G. So what is A minus G? A is what this? A plus B divided by 2. What is G? Root AB. A minus G, this is A and this is G. So अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे A plus B minus 2 root AB minus 2 root AB divided by 2. हम इस A को ऐसे करेंगे रूट A स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 2 रूट A इंटू बी डिवाइडेड बाई 2. सो दिस टर्म रूट A माइनस रूट बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. root A minus root B whole square, it is a complete square, it is whole square is equal to what? Divided by 2. So this square is definitely greater than or equal to 0. This term definitely greater than or equal to 0. It means A minus G is greater than or equal to 0. स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता. दैट मीन्स व्हाट? दैट टर्म इज डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और ये 2 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 0 है. दिस स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव. नेवर नेगेटिव मीन्स नेवर लेस देन 0. सो इट मीन्स A माइनस जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो देयरफॉर ये माइनस जी तो प्लस हो जाएगा. सो A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू G. ये एक प्रूव हो गया हमारा. राइट. अब हम और एक टर्म प्रूव करेंगे. देखो यहाँ पर ये A माइनस जी हो गया. अब G माइनस एच करेंगे. G माइनस एच. देन G इज व्हाट? रूट AB. H इज व्हाट? H इज दिस 2AB अपॉन A प्लस B. से रूट AB माइनस 2 इंटू रूट A इंटू रूट B. एक ही टर्म लिखेंगे रूट AB इंटू रूट AB डिवाइडेड बाई A प्लस B. देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है. जो ऊपर AB था उसको रूट AB इंटू रूट AB किया. रूट AB इंटू रूट AB इज ऑब्वियसली व्हाट? AB. सो नाउ हियर टेकिंग रूट AB कॉमन इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 रूट AB divided by what? A plus B. So this root AB as it is, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू दिस इज A प्लस B माइनस 2 रूट AB डिवाइडेड बाई A प्लस B. राइट. अब ये न्यूमरेटर दिस बिकम्स अंडर रूट AB इन ब्रैकेट रूट A होल स्क्वायर प्लस रूट B होल स्क्वायर माइनस 2 रूट AB डिवाइडेड बाई A प्लस B. A प्लस B न्यूमरेटर बिकम कंप्लीट स्क्वायर. रूट AB इन ब्रैकेट रूट A माइनस रूट B होल स्क्वायर अपॉन A प्लस B. and this total is never less than 0. स्क्वायर रूट में टर्म इन पॉजिटिव होती है, वो स्क्वायर ही पॉजिटिव होता है, डिनोमिनेटर आल्सो पॉजिटिव, सो दैट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इट मींस व्हाट? G minus H is greater than equal to 0. G minus H is greater than equal to 0 means what? G is greater than or equal to 0. G is greater than or equal to 0. अगर A greater than or equal to G है, G greater than or equal to H है, so we can write therefore A is
greater than or equal to G, G is greater than or equal to H. A is greater than or equal to G, G is greater than or equal to H. So इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं ऐसा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, H is less than or equal to G, G is less than or equal to A. So this is very important concept of arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. इन तीनों में जो रिलेशनशिप का जो कंसेप्ट है, so what is the relationship between A, G and H? So it is very simple, G square is equal to A into H. और दूसरा कौन सा है, A is always greater than or equal to G and G is always greater than or equal to H. It means H is less than or equal to G and G is less than or equal to A. So this is the concept which is the theorem on arithmetic mean, geometric mean and harmonic. Is it clear? Very simple concept. Now we will take the examples on this. So let us see the remaining examples of exercise 2.4. Last time we taken the example number 1. Now this is example number 2. So find the nth term and hence find the eighth term. पहले हमें nth term find करना है, उसके बाद eighth term find करना है of following HP. This is given HP. HP means what? इसका जो रेसिप्रोकल है वो डेफिनेटली AP में है. AP का जो भी है मीन्स मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि देर इज नो एनी जनरल फार्मूला फॉर nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन. हमें जो भी एग्जाम्पल सॉल्व करना है AP के फार्मूले अप्लाई करके ही सॉल्व करना है. जो भी आंसर आएगा उसका सिर्फ रेसिप्रोकल लिखना है. दैट इज योर आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. ओके, सो देखो सोल्यूशन. 3 एग्जाम्पल है, मैं 2 सॉल्व करके देता हूँ. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 are in HP. Therefore 2, 5, 8, 11 are in arithmetic progression. Therefore A is equal to 2, D is equal to 3. Common difference कितना है? 3 है. 5 minus 2 3, 8 minus 5 3, 11 minus 8 3. So A D हो गया. अब Tn का फॉर्मूला. So what is Tn formula? A plus n minus 1 into D. This is nth term of arithmetic progression. So it is 2 plus n minus 1 into D. D is 3. So 2 plus 3n minus 3. So 3n minus 1. This is Tn. 3n minus 1. This is Tn. So 2 minus 3 is minus 1. ये होगा nth term of this AP. अब हमें इसका 8th टर्म फाइंड करना है. T8 3 into 8 minus 1. So 3 into 8 is 24. 24 minus 1 is 23. So this is 8th term. But this 8th term of AP, this nth term of AP, 8th term of AP. Therefore, for HP, Tn is equal to 1 upon 3n minus 1 and T8 is equal to 1 upon 23. सिर्फ n की जगह पर 8 लिखा है. 8 3 are 24, 24 minus 1 23. ये आंसर AP के है, लेकिन हमें HP के लिए फाइंड करना है. सो Tn जब इसका रेसिप्रोकल लिया, 23 का रेसिप्रोकल 1/23. बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल. अभी इससे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके दिया. आप सेकंड ट्राई करो. मैं थर्ड एक बार और एक सॉल्व करके देता हूँ. सो थर्ड एग्जाम्पल गिवन 1/5, 1/10, 1/15, 1/20 are in HP. Therefore 5, 10, 15, 20 are in AP. रेसिप्रोकल AP में है. इट मीन्स फर्स्ट टर्म इज 5, डिफरेंस इज ऑल्सो 5. तो वैसे तो ये तो टेबल है 5 का. इट्स अ 5n. 5, 10, 15, 20 5 का डिफरेंस है. फर्स्ट टर्म भी 5 है. मीन्स द टेबल ऑफ 5. सो nth टर्म इज 5n आ जाएगा.
nth टर्म क्या आएगा 5n जनरल टर्म, और इसका 8th टर्म कितना आएगा, डेफिनेटली 40 आएगा। 5 इंटू 8 nth टर्म 5 8 इज 40 आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमें प्रोसीजर से सॉल्व करना है। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a इज 5, n इज d इज ऑल्सो 5 प्लस 5n माइनस 5, so therefore 5n is the general term of AP. 5n is the general term of AP. अब हमें 8 टर्म फाइंड करना है, T8, 5 into 8 is 40, 8th term, but 5n and 40 are the answers of AP. हमें फाइंड करना है for HP. For HP, the nth term is 1 by 5n and 8th term is 1 by 40. ये उसका आंसर। सो बहुत ही सिंपल है, HP is nothing but the reciprocal of AP. AP is nothing but the reciprocal of HP. Okay, so we'll take next example immediately. Okay, let us see the next 3 examples, which are very very simple. The examples on the relationship between A, G and H. Example number 3, example number 4, example number 5 of exercise 2.4. So read first example third. हम एक example third solve करेंगे. So what he has given, question में क्या दिया है, सबसे important है find AM. हमें AM find करना है of two positive numbers whose GM and HM दिया है. GM is 4, HM is 16 by 5 respectively. So let solution of third A. So right here let A, G and H are AM, GM and HM of two positive number A and B respectively, of two positive numbers A and B respectively. AGH, AM, GM, HM होता है. So given, what is given? G is 4 and H is 16 by 5. 16 by 5. अब रिलेशनशिप का एक ही फॉर्मूला है, सो वी नो दैट. लिखो यहां पर, वी नो दैट G square is equal to A into H. सो G स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर. ये कितना है जो फाइंड करना है, H कितना है 16 by 5. सो 16, ये 5 ऊपर, ये 16 नीचे, दैट इज A. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ A? A इज इक्वल टू 16, 16 कैंसल, A इज इक्वल टू 5. ये मीन्स व्हाट, अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस टू नंबर्स इज हाउ मच, कितना आ गया, 5 आ गया. अब सेम ऐसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशन ये कंप्लीट यहाँ पर कॉपी करना है आपको. यहाँ पर लिखो ये सेम, ए जी एच आर ए एम जी एम एंड एच एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. सो यहाँ पर गिवन है ए एम इज 15 by 2, जी एम इज 6. सो सिर्फ गिवन चेंज करो. गिवन ए एम 15 by 2 है और जी एम कितना है 6, जी इज इक्वल टू 6. सो फॉर्मूला लिखो, वी नो दैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच, 6 स्क्वायर 15 by 2 इंटू एच. एच इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय व्हाट 15. शिफ्टिंग क्या, 15 by 2 इधर 2 by 15 हो जाएगा, 36 इंटू 2 by 15. देखो आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 1 2 3 5. सो व्हाट इज आंसर, एच इज इक्वल टू 24 by 5. 12 2 are 24 by 5.
एच एम फाइंड करना था 24/5 आ गया, ए एम फाइंड करना था 5 आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर जो 5 है, इन शॉर्ट में सब मैं लिख के दिया है, लेकिन 5 का शॉर्ट में आंसर सॉल्व करेंगे। जी एम फाइंड करना है, जी स्क्वायर, ये कितना है 75, एच कितना है 48, ए एम एंड एच एम इसका मल्टीप्लिकेशन करो और स्क्वायर रूट फाइंड करो, वही आपका आंसर आएगा, दैट इज जी। जी इज पॉजिटिव ले लो बिकॉज पॉजिटिव नंबर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ओके, सो विल टेक नेक्स्ट एग्जांपल आफ्टर 6. ओके, लेट अस सी द एग्जांपल नंबर 6 and 7. टोटल एग्जांपल ले रहा हूं मैं 1 to 5 एग्जांपल लिया, अभी 6 7 लूंगा, इसके बाद और एक एग्जांपल बाकी सिर्फ। So read the example for 6 and 7. Insert two numbers between 1/4 and 1/3. 1/4 and 1/3 में हमें दो नंबर इंसर्ट करना है, so that the resulting sequence is HP. So HP आना चाहिए वो, so means ये दो नंबर HP के हैं, उसमें दो नंबर इंसर्ट करना है। देखो इसको हम रेगुलर मेथड से सॉल्व करेंगे, बाद में फार्मूला कैसे अप्लाई करना वो भी मैं सिखाऊंगा। एग्जांपल नंबर 6, लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 6. इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 1/4 and 1/8. सो लेट H1 and H2 are two numbers that is 1/4, H1, H2, 1/ कितना है 3 R in EHP। ये दो नंबर H1 H2 ही क्यों लिया कि बिकॉज हमें रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या लाना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन लाना है। सो बेटर वे H1 H2 ही कंसिडर करेंगे। सो 1/4 H1 H2 एंड 1/3 दो ही नंबर इंसर्ट करना है। अगर 3 नंबर इंसर्ट करना था तो H1 H2 H3 लेते थे। सो अगर ये HP में है, सो देयरफॉर 4 1/H1 1/H2 एंड 3 आर इन AP। ये किस में होंगे, AP में होंगे। सो AP की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। So T1 is equal to 4, T2 is equal to 1/H1, T3 is equal to 1/H2 and T4 is equal to what 3. So ये AP के है, AP की फर्स्ट टर्म क्या होती है 4 होती है, AP की फर्स्ट टर्म ये होती है A is equal to 4, सेकंड टर्म क्या होती है A plus D 1/H1, थर्ड टर्म मीन्स व्हाट A plus 2D इज इक्वल टू 1/H2, फोर्थ टर्म क्या होती है, मैं नीचे लिखता हूँ इसको A plus 2D, थर्ड टर्म A plus 2D इज 1/H2 एंड फोर्थ टर्म मीन्स A plus 3D, A plus 3D इज इक्वल टू 3, A plus 3D इज इक्वल टू 3 है। सो ये कितना हमें 4 है। सो देयरफॉर 4 plus 3D is equal to 3, 3D is equal to 3 minus 4 is -1, so D कितना आ गया -1/3। फर्स्ट टर्म 4 है, D -1/3 है। सो हम अभी H1 H2 फाइंड करना है जो हमने कंसिडर किया था। सो देयरफॉर A plus D 4 minus 1/3 is equal to 1/H1, 12 minus 1 11/3 is equal to 1/H1, therefore H1 is equal to 3/11। ये H1 आ गया, कितना आ गया 3 उसका रेसिप्रोकल लिया एंड A plus 2D 1/H2 है, ये कितना है ये 4 है, प्लस 2D कितना है -1/3 है, इज इक्वल टू 1/H2। सो 4 - 2/3 इज इक्वल टू 1/H2।
4 3s are 12, 12 minus 2 is 10, 10 by 3 is equal to 1 by H2. So what is H2? H2 आ गया 3 by 10. H2 कितना आ गया 3 by 10. H1 कितना 3 by 11. H2 कितना 3 by 10. Therefore the resulting sequence is, पहली टर्म कितना है 1 by 4, दूसरी टर्म कितना है H1 कितना है 3 by 11, नेक्स्ट इज व्हाट 3 by 10, उसके बाद कितना है 1 by 3 है. R in EHP, ये किसमें है EHP में है. पूरा सॉल्व करके दिया है. एक बार मैं रिपीट एक्सप्लेन करता हूँ. सो H1 एंड H2 आर टू नंबर विच वी हैव टू इंसर्ट इन दिस टू नंबर्स. हमें उसमें इंसर्ट करना है 1 by 4 एंड 1 by 3 में इंसर्ट किया. सो अगर ये HP में है तो इसका रेसिप्रोकल किस में होगा AP में होगा. 4 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, T1 T2 T3 T4. हमें पता है T1 क्या होता है, ये होता है. T2 क्या होता है, A प्लस डी. T3 क्या होता है, A प्लस 2D. एंड T4 कितना होता है, A प्लस 3D होता है. सो सब में लिखा A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D. अब देखो A प्लस 3D मैंने सॉल्व किया, वो 3 है. सो ये हमें नोन है 4. 3D की वैल्यू -1 आ गई, D की वैल्यू -1 by 3 आ गई. 3 - 4 -1, D -1 by 3. ये हमें पता था. D हमने फाइंड किया -1 by 3. देन वी कैन फाइंड A प्लस D एंड A प्लस 2D. दिस इज A प्लस D एंड दिस A प्लस 2D. A प्लस D is 1 by H1, A प्लस 2D is 1 by H2. So 1 by H1 is equal to 11 by 3, H1 is equal to 3 by 11. So 10 by 3 is equal to 1 by H2, H2 is equal to 3 by 10. So ये H1 H2 वही हमें फाइंड करना था. सो रिजल्टिंग सीक्वेंस आर इन HP 1 by 4, 3 by 11, 3 by 10 एंड 1 by 3. ये आंसर किसका होगा 6 का. अब हम इमीडिएटली 7 नंबर सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 7. अब 7 नंबर देखो. इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 1 एंड -27. 1 और -27 में हमें 2 नंबर इंसर्ट करना है as like the last example. But here important the resulting sequence कैसा है GP है. रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में आना चाहिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आना चाहिए. सो देखो यहाँ पर लेट G1 and G2 are 2 numbers that is इंसर्ट जो करना है 1 और -27 में करना है. ये 1 और -27, इसमें एक G1 है, दूसरा G2 है. सो ये दोनों भी, ये क्या है R in GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म G1 है, थर्ड टर्म G2 है, फोर्थ टर्म -27 है. फर्स्ट टर्म ऑफ GP, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म ऑफ GP. हम फर्स्ट टर्म को ये कहते हैं, सो ये इज इक्वल टू 1. सेकंड टर्म को AR कहते हैं, AR इज इक्वल टू G1. थर्ड टर्म को हम AR स्क्वायर कहते हैं, G2. एंड फोर्थ टर्म को हम AR क्यूब कहते हैं. AR क्यूब कितना है -27. सो देयरफॉर ये कितना है 1 इंटू R क्यूब इज इक्वल टू -27. सो R क्यूब इज इक्वल टू -27. सो R आ गया -3. R कैसा है -3 है. ये कितना है 1 है, R कितना है -3 है. सो -3 कैसे लिखा मैंने, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -3 का क्यूब कितना होता है -27. दैट्स वाई इफ R क्यूब इज इक्वल टू -27 इट मीन्स R इज इक्वल टू व्हाट -3. ये पता था, R फाइंड किया. अब हम T2 एंड T3 फाइंड करेंगे. ओके, तो इसका सॉल्यूशन मैं इधर कैरी करता हूँ.
we'll carry from here. So AR, A into R is equal to G1, which implies A is 1, R is -3. So which is equal to what? -3. नीचे लिखता हूँ मैं यहाँ पर 1 into -3 is equal to G1. Therefore G1 is equal to what? -3. ये हमारे पहली टर्म आ गए. अब हमें फाइंड करना है G2. G2 क्या है? A इंटू आर स्क्वायर है, ये G2 है. सो ये 1 है, आर स्क्वायर 9 है, -3 का स्क्वायर 9, ये बन गया है G2. सो G2 इज व्हाट? 9. सो देयरफॉर द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज, फर्स्ट टर्म कितनी थी? 1, सेकंड टर्म G1, थर्ड टर्म G2 एंड फोर्थ टर्म इज -27. आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. वेरीफाई कर सकते हैं हम, इसको चेक भी कर सकते हैं. ये हमारा आंसर, ये हमारा 6 नंबर का आंसर था, ये हमारा 7 नंबर का आंसर है. इज इट क्लियर? सो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है. 6 और 7 दोनों का सॉल्व किया, 7 को इधर मैंने कैरी किया है, राइट. सो ये देखो हमने रेगुलर मेथड से सॉल्व किया है, ये हम फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. सो 2 नंबर इंसर्ट करना मीन्स A1 A2 है, 2 नंबर GP में इंसर्ट करना है तो G1 G2 है, 2 नंबर HP में करना है तो H1 H2 है. इसका एक फार्मूला है, राइट. सो हम फार्मूला वो अभी यहाँ पर क्लियर करेंगे. एक AN का फॉर्मूला है, AN इज इक्वल टू A प्लस N इंटू N माइनस 1 B माइनस A अपॉन N प्लस 1. आणि GN का फॉर्मूला है A इंटू B बाय रेस टू N अपॉन N प्लस 1. AN और GN है, AN and GN. N arithmetic mean of 2 numbers A and B and N geometric mean of 2 numbers A and B, AN and GN. सो हम यहाँ पर जो A1 A2 जो कंसिडर किया था, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का है, यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है. सिर्फ इसका रेसिप्रोकल लेना है. 1 रखो यहाँ पर 1 रखो, यहाँ पर 1 रखो. G1 G2 है तो यहाँ पर 1 रखो, ये 1 रखो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएंगे. ये बाय फॉर्मूला मेथड है और ये हमारा रेगुलर जो हमारे बेसिक कंसेप्ट ऑफ AP GP के है, उसी के हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट. सो 6 and 7 एग्जाम्पल्स आर कंप्लीटेड हियर. बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है. एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ तक आ गया, राइट. ऐसे हम 3 नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं, 4 नंबर इंसर्ट कर सकते हैं. यही प्रोसीजर से सॉल्व करना है. इज इट क्लियर? सो MST CET JEE मेन एग्जाम में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इस पे आते हैं. सो ये हम डायरेक्ट फार्मूला मेथड से ही सॉल्व करेंगे, नॉट बाय रेगुलर मेथड. ओके, let us see the example number 8 and 9. These are the last examples of this exercise 2.4. दोनों बड़े बड़े सॉल्यूशन है लेकिन वेरी मच सिमिलर है. सिर्फ आपको एग्जाम्पल रीड करना है. इफ द AM of 2 numbers exceeds their GM by 2, exceeds मीन्स उसमें ऐड होना, बढ़ना, and their HM by 18/5, फाइंड द 2 नंबर. जो हमें 2 नंबर्स फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है. देखो सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे. फर्स्ट हम इसको एग्जाम्पल नंबर 8. अगर 8 देखेंगे तो अपन डेफिनेटली आपको 9 डेफिनेटली आएंगे. सिर्फ नंबर चेंज किया. यहाँ पर 2 है, 1/2 है, 18/5 है, 25/26 है. सो लेट अस राइट हियर. लेट A, G and H are AM, GM, HM of 2 numbers A and B respectively. So therefore AM का फॉर्मूला A plus B by 2,
GM का फॉर्मूला रूट ए बी, HM is 2AB upon A plus B, 2AB upon A plus B. So now given AM is exceeds GM by 2 and that of HM by 18 by 5. HM by 18 by 5, GM by 2 है और HM by 18 by 5. So इसकी इक्वेशन 1 करेंगे, इसको इक्वेशन 2 करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे. सॉल्विंग वन एंड टू. सो देयरफॉर देखो क्या होता है, A इज इक्वल टू G प्लस 2, A इज इक्वल टू H प्लस 18 बाय 5. सो माइनस 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 प्लस A माइनस A कैंसल 0, ये G माइनस H, 2 माइनस 18 बाय 5 और साइड में कैलकुलेशन करो, 2 माइनस 18 बाय 5, 5 2 ज़ा 10, 10 में से 18 गए माइनस 8 बाय 5, सो इट इज माइनस 8 बाय 5. सो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे हम G माइनस H इज इक्वल टू 8 बाय 5. ये प्लस 8 बाय 5 इधर ये माइनस 8 बाय 5 हो गया. सो यहाँ पर G कितना बन जाएगा, G इज इक्वल टू H प्लस 8 बाय 5. ये G हो गया G स्क्वायर इज इक्वल टू AH. ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, G स्क्वायर इज इक्वल टू AH. G इज इक्वल टू H प्लस 8 बाय 5. ये सॉल्व किया मैंने, ये प्लस A माइनस A कैंसल, G माइनस H, 2 माइनस 18 बाय 5 इज माइनस 8 बाय 5. ये कैलकुलेशन उसका, ये माइनस 8 बाय 5 लेफ्ट में 8 बाय 4 होगा, प्लस होगा. सो G इज इक्वल टू H प्लस 8 बाय 5 हो गया, H प्लस 8 बाय 5. नाउ G स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू H. सो ये ऐसे कर सकते, यहाँ से H फाइंड करेंगे, दैट इज बेटर. माइनस H इधर, H इज इक्वल टू G माइनस 8 बाय 5. ये प्लस 8 बाय 5 इधर माइनस 8 बाय 5, माइनस H इधर प्लस H. ओके, सो दिस इज दिस H, ये की वैल्यू AH की वैल्यू. नाउ दैट इज बेटर. इसको बहुत सारे तरीके से इसको सॉल्व करना है. हमें A भी फाइंड करना है, फाइंड टू नंबर्स. सो हम यहाँ पर जो रिलेशनशिप का फॉर्मूला है G स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू H, वही हमें अप्लाई करना है. सो वेगवेगले अलग अलग टेक्निक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो जिसमें जितना कम कैलकुलेशन है वो देखना है. सो ये H इज इक्वल टू G माइनस 8 बाय 5 हो गया और A इज इक्वल टू G प्लस 2 हो गया. सो वी नो दैट G स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू H. सो G स्क्वायर कितना है, ये लेफ्ट हैंड साइड में G स्क्वायर, ये इज G प्लस 2, ये G प्लस 2 और H कितना है, G माइनस 8 बाय 5, G माइनस 8 बाय 5 है. सो दिस इज G स्क्वायर, G इंटू G स्क्वायर, G इंटू दिस इज माइनस 8 बाय 5G plus 2 into G is plus 2G plus 2 into this 8 to the 16 by 5, 16 by 5 plus 2 into minus 8 minus 16 by 5. ये G स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर 0. सो G कॉमन लेंगे, यहाँ पर माइनस 8 बाय 5 प्लस 2 हो गया, ये माइनस 16 बाय 5. सो G minus 8 plus 10, it is 2 by 5, minus 8 plus 10, 10 में से 8 गए 2 by 5, minus 16 by 5 इधर plus 16 by 5 is equal to plus 16 by 5. ये 5 cancel. So therefore G is equal to 18 by 2, 16 by 2
देयरफॉर g इज इक्वल टू व्हाट 8। अगर g की वैल्यू 8 है तो हमें a फाइंड करेंगे a, देयरफॉर a becomes 8 plus 2। what is a is equal to 10। a की वैल्यू 10 है, g की वैल्यू कितना है 8 है। अब a की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं। g मीन्स व्हाट रूट ए बी इज इक्वल टू 8। a दिस इज व्हाट a इज इक्वल टू 10, इट मीन्स व्हाट a प्लस b इज इक्वल बाय 2 इज इक्वल टू 10। a प्लस b बाय 2 इज इक्वल टू 10। सो हम इसको सॉल्व करेंगे अब a प्लस b। सो देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू 20। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड करेंगे। ट्वेंटी हो गया। अब रूट ए बी कहाँ पर रखेंगे? रूट एट इज इक्वल टू रूट ए बी इज इक्वल टू 8 है। सो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एच फाइंड हुआ तो बहुत आया। एच क्या होता है? 2ab अपॉन a प्लस बी। जब g की वैल्यू हो गई वो, अगर g की वैल्यू a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 10, सो इधर लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 20। ये कट करेंगे, a की वैल्यू 10 थी, देयरफॉर 10 इज इक्वल टू h प्लस 18/5। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू 10 माइनस 18/5। 10 माइनस 18/5, 50 माइनस 18, h 50 माइनस 18 32, 32/5। h हो गई, ये g हो गई, ये 10 हो गए। 50 माइनस 18 इज 32/5 हो गई। सो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर h कितना का 30, दैट मीन्स 2ab अपॉन a प्लस बी। 2ab अपॉन a प्लस बी कितना आ गया? 32/5। सो a प्लस बी हमारा कितना है? 20 है, 10 हो गया। 2ab 2 into 8 16 64 32/5। a भी कैलकुलेट करना है हमें। अगर ए बी की वैल्यू 64 है तो ए बी कितना आ गया? 6 का स्क्वायर 64। रूट ए बी इज इक्वल टू 8, ए बी कितना है? 64। सो बी इज इक्वल टू व्हाट? 64 डिवाइडेड बाई ए। इसकी जरूरत नहीं, हम इसको रिमूव करेंगे। ए बी फाइंड करना है। ए प्लस बी इज इक्वल टू 20। ये जो a प्लस बी इज इक्वल टू 20 है, यहाँ पर b रखेंगे। b कितना है? 64/a इज इक्वल टू 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 20a। a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। 16 4 जा 6। Factors are a minus 16 and a minus 4 is equal to 0. 16 4 जा 64 plus 64 minus 20 आना चाहिए, minus 16 minus 4। सो ये की वैल्यू आ गई 16 और ये की वैल्यू कितनी आ गई 4। सो यहाँ पर मैं उसको कैरी करता हूँ। देखो यहाँ पर ये 16 है तो b आता है 20 माइनस 16 विच इज 4। अगर a 4 है तो b कितना आता है? 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16। देयरफॉर